I am Anu Kumari. I am an IAS officer of batch 2018. I am basically from Haryana, Sonipat district, and I am at present posted in Kannur district of Kerala Kadar. So that is a brief description about me. Now I will straight away start with the FAQs. So even before going to how to start preparation, first I would want to talk about. I get a lot of questions. बहुत लोग पूछते हैं जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, 12th में हैं, या मे बी फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हैं. दे कीप ऑन आस्किंग कि what should we do at this stage for our UPSC preparation. So first of all, to these children, I want to tell, life is much more than just UPSC. So at these stages of your life, when you are pursuing your 10th standard, 12th standard, or just the initial years of college, you should, instead of right away going into the rigor of UPSC preparation and starting reading those books which are relevant for UPSC, but please focus on developing a wholesome personality that is going to help you more to crack UPSC when the time comes, rather than immersing yourself in UPSC oriented books at this stage. What do I mean by a wholesome personality? So, what I would want to say is, at this stage, you should focus on um, owning your skills, owning your hobbies, developing a genuine interest in anything. It can be cricket, music, dancing, painting, some game, some sport, watching movies, or anything that you genuinely like. Develop a passion for that and study that thoroughly. Okay, try to gain genuine knowledge about that. Be alert about what is happening in that particular field around you. When it comes to academics, instead of reading or studying maybe UPSC oriented books, focus on what is your curriculum. Because what happens is, when you will actually prepare for UPSC and you will sit for the personality test or the so called interview, then you, most probably being a fresher, most of the questions could be emerging from your academic background. So at that point of time, if you have a thorough and genuine knowledge, your fundamentals are clear, that is going to aid you more as compared to you immersing yourself in UPSC oriented books at this young age. Okay, moving forward, the second question which I get often is how to start preparation. Okay, how to start preparation from zero. सो बच्चे उसके लिए आसान सी चीज़ है. सबसे पहले आप अपनी बुक लिस्ट कंपाइल करिए. और बुक लिस्ट कंपाइल करने का क्या तरीका है? यू कैन गो एंड सर्फ थ्रू द बुक लिस्ट ऑफ previous toppers, whoever you like, or the latest toppers, whatever you feel like. Do a research on that. Then you compile a book list, going by your research on the book list of multiple toppers. इसमें मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी. ट्राई टू कीप योर सोर्सेज लिस्ट शॉर्ट. अगर आप इसे ज़्यादा लंबा करते जाते हैं ना, क्वाइट ऑफन इन मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, वो लोग हर एक नए टॉपिक के लिए एक नई किताब बता देते हैं. बट ट्रस्ट मी, वी all study, when we study for UPSC, we study in a time bound manner. We really have shortage of time. हर एक नए टॉपिक के लिए एक नई बुक कवर करना is next to impossible. So be practical, keep your book list short, and try to take multiple revisions of that instead of going for a large number of books to begin with. तो सबसे पहले आप अपनी एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है? टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स. अब एनसीईआरटी बुक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, नई वाली पढ़े या पुरानी वाली, वेदर टू स्टडी द ओल्ड वन और द न्यू वन. तो मैंने ओल्ड वाली पर्टिकुलरली नहीं ली थी. आई हैड जस्ट गॉन टू अ बुक शॉप और जो मुझे मिली मैं लेके आ गई थी. टर्न्स आउट दैट दे वर द न्यू एनसीईआरटी. तो वो करके मैंने किया था एंड इट टर्न्ड आउट वेल. उसमें भी यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन एवरीथिंग. सो बुक लिस्ट बनाइए, start preparing, preferably starting with NCERTs. Again, 6 to 12 सारी NCERTs नहीं करनी है. You're not supposed to go through each and every NCERT. The
पैटर्न ऑफ द पेपर इज़ चेंजिंग। बहुत पुराने टाइम में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते थे जिन्हें हम जनरली ये बोलते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन-सी बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से, मेबी बहुत टाइम पहले। Nowadays, the questions are not, too much FAQ oriented, that too related to NCERT books. So, flip through the NCERT books. You can cover only the relevant ones. For that, you can refer my book list or the book list of any other topper. But 6 to 12 सारी NCERTs करने की ज़रूरत नहीं है। Once you start, NCERT बुक आपने कवर की। अगेन, वन क्वेश्चन दैट इज ऑफन आस्क्ड इज, एक बुक को पहले एक बार खत्म करके देन टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक, या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बुक्स यू कैन कवर पैरेलली और साइमल्टेनियसली। सो अगेन, कंप्लीटली योर चॉइस, व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू, आपको क्या ठीक लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो फॉर मी इट वाज दैट आई वुड टेक अप वन बुक, उसको खत्म करके ओनली आफ्टर दैट आई वुड मूव ऑन टू द न्यू बुक। ऐसा करने से मुझे जो फ़ायदा होता था वो ये था कि आई वुड बी हैविंग अ बेटर आइडिया कि मैं एक बुक की एक रीडिंग या एक प्रॉपर वाली लर्निंग कितने टाइम में कर पा रही हूँ। सो सूट योरसेल्फ, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप वो अपनाइए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, बी इट प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस और द पर्सनैलिटी टेस्ट, डू कीप इट इन योर माइंड कि सारे कंटेंट को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तभी जाके हमारी रिटेंशन अच्छी होती है, तभी जाके वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इन दी एक्चुअल सेटिंग्स। मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में या पर्सनैलिटी टेस्ट में हम उसे बता तभी पाते हैं। तो क्वाइट ऑफन स्टूडेंट्स आस्क, मुझे याद नहीं रहता है। So trust me बच्चे, it is very natural, it is a normal thing, happens to everybody. मैं अगर अपना आज की if I tell you about myself today, लक्ष्मीकांत मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, लगभग 4 साल पहले। So अगर आज कोई मुझसे आके somebody ask me about the articles etc of लक्ष्मीकांत या पॉलिटी, तो मुझे बहुत कम याद होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने ऑब्वियसली उस बुक को रिवाइज़ नहीं किया है। सो रिविजन इज़ व्हाट मैटर्स। कोई भी आइंस्टाइन पैदा नहीं होता है माँ के पेट से कि एक बार पढ़ दिया सारा याद हो जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग, एंड व्हेन वी से दैट यू रीड अ बुक, सो इट्स नॉट जस्ट मियर रीडिंग। इफ यू जस्ट रीड इट, ट्रस्ट मी, रिटेंशन नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट। तो आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको उसे लर्न करना है, मेमोराइज करना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली समझना है। अगर हम मगिंग या क्रैमिंग करते हैं ना, तो द टेंडेंसी टू फॉरगेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर। तो you have to focus on memorizing the things. Then हर एक स्टेज से पहले, जैसा मैं बोल रही थी, प्री हो, मेंस हो या इवन पर्सनैलिटी टेस्ट, आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को कई-कई बार रिवाइज़ करना है। फॉर मी दैट फिगर वाज़ समवेयर अराउंड 5-6 टाइम्स, एंड व्हेन आई से 5-6 टाइम्स यू हैव टू स्टडी अ बुक, दैट मीन्स सबसे पहले आपकी जो रीडिंग होगी, दैट कैन बी अ कर्सरी रीडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक। आपको समझ आ रहा है या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। व्हेन यू टेक द सेकंड रीडिंग, that has to be actual memorization and actual learning. When you take the third reading, then try to see कि how much of it you are able to retain और कितना आप भूल गए हैं, and then again memorize and learn those things which you are forgetting. ऐसा ही करके आपको अपनी चौथी रीडिंग लेनी है, पांचवी लेनी है। What begins to happen is when you reach maybe a fourth या fifth reading of that book, तो आपका रिटेंशन पार्ट इंक्रीज होता चला जाता है। एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि व्हेन द एग्जाम वाज अप्रोचिंग, फॉर एग्जांपल अगर प्री हमारा 1 हफ्ता दूर है और मुझे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की रिविजन करनी थी, तो आई वुड फ्लिप थ्रू दोज़ बुक्स। उस टाइम मैं एक-एक वर्ड पढ़ के उस पूरी बुक की रिविजन नहीं लूँगी, रादर मैंने उसमें अपने सेक्शंस हाइलाइट कर रखे थे, पॉइंट्स हाइलाइट कर रखे थे, व्हिच आई यूज्ड टू फाइंड डिफिकल्ट टू मेमोराइज़ एंड व्हिच आई हैड अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। तो मेबी मेरी जो लास्ट रीडिंग थी, दैट वाज़ मोर फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स रिवाइजिंग दोज़ पॉइंट्स व्हिच आई फाउंड डिफिकल्ट। सो व्हेन आई से मल्टीपल रिविजन्स, दैट यू हैव टू अट्यून टू योरसेल्फ कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हर एक रीडिंग में रिवाइज करना है, या फिर व्हेन यू गो टुवर्ड्स दी व्हेन यू रीच द एग्जाम, तो आप सिर्फ उन पार्ट्स पर फोकस कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और बाकी पार्ट्स यू आर श्योर, यू हैव टू एंश्योर कि वो ऑलरेडी मेमोराइज हो चुके हैं, यू डोंट हैव अ डिफिकल्टी इन रिटेनिंग दैट। तो बच्चे, प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करनी है। जस्ट टू समराइज अगेन, बुक लिस्ट बनाइए, बुक्स रीड करना शुरू कर दीजिए, प्रेफरेबली एनसीईआरटीज़ बिकॉज़ दे आर रिलेटिवली ईज़ियर, देन मूव ऑन टू अदर स्टैंडर्ड बुक्स। अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। एक मोटी-मोटी अगर मैं टाइमलाइन बताऊँ जो मैंने अपनाई थी, व्हिच आई फॉलोड,
मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए लगभग 4 महीने रख लो कि 4 महीने में अपना जनरल स्टडीज़ का सारा कोर्स हमें कंप्लीट करना है। Once you have finished your general studies, after that you can kind of devote around 4 months to your optional. Okay, and after that, if we say, and this I am telling you this broad timeline, keeping in mind that you are starting your preparation at least 1 year in advance to the preliminary exam that you are targeting. शुरुआत के 4 महीने आप जनरल स्टडीज़ कंप्लीट करने में लगा सकते हैं, एंड व्हेन आई से कंप्लीट, दैट मीन्स कि मल्टीपल रिविजन्स, ओके, एंड रिटेंशन शुड स्टार्ट हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगले 4 महीने यू कैन डेडिकेट, नेक्स्ट 4 मंथ्स यू कैन डेडिकेट टू योर ऑप्शनल। अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, एंड in these months I'm not talking about answer writing practice, I'm coming to that next. So once in the initial 4 months when you have done your GS, then in the next 4 months when you are not going to touch your standard GS wala books again, rather you are going to focus only on your optional, that is a good time to start answer writing practice for the mains. Okay, because आपने सारा GS का स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स यू वुड हैव बीन डूइंग राइट फ्रॉम डे 1, तो आपका एक बेस बन चुका है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? यू नो, be ready and be prepared. The very first answer that you are going to write, that is not going to be of good quality or of the standard that is required for UPSC. When I wrote my first answer, so trust me, I had gone on and on blabbering for like 2.5 pages of a big register, और समझ नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। जो बिगिनिंग होती है उसमें मैंने लगभग 2 पैराग्राफ्स तो बिगिनिंग में ही लिखे थे, इवन बिफोर मूविंग ऑन टू द एनालिसिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। So this happens when we write our first answer, that is not going to be of optimal quality, but with practice everything comes. Around 1.5-2 महीने में I was kind of confident कि yeah, I can write a decent answer today, and this was like 1.5 or 2 months of dedicated daily answer writing practice. To begin with, you can start with maybe writing 1 or 2 answers daily, then in a week or two you can graduate to writing maybe 4 answers, and just writing the answer is not important. What is important is you compare that answer with the answers of the fellow aspirants or with the model answer given by some particular institute जिसके भी questions आप solve कर रहे हैं, and then analyzing where you are faltering. आपका flaw कहाँ lie कर रहा है? Is it the speed? Is it the content? Whatever it is, analyze करो और इस पे work करो, and with time only things fall in place. शुरुआत में आप अपनी स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. मे बी इन 8 or 9 minutes you won't be able to write a decent answer, but trust me, have patience, keep on practicing, and with time things will fall in place. तो जो ये 4 महीने मैंने बताया जिस समय आप अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ के साथ आपकी जीएस की मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जीएस कंटेंट के लिए पक्का अच्छे से हो जाएगी इफ यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। देन मूविंग ऑन, 4+4 लगभग 8 महीने हो गए हैं, आर जीएस इज कवर्ड, आर ऑप्शनल इज कवर्ड, देन वी आर मूविंग क्लोज टू प्रिलिमिनरी नाउ। सो अभी लगभग 4 महीने बचे हैं, तो इनिशियल 2 मंथ्स में क्या करना है, यू हैव टू अगेन स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल दोज जीएस बुक्स विच यू हैड डन इन द इनिशियल 4 मंथ्स। जितनी रिविजन ले सको आप उसकी ले लो। लास्ट की जब 2 महीने की बात आती है, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू जस्ट लूज टच विद योर ऑप्शनल, and you have to completely focus on your pre-exam and on the GS part. तो इस दौरान आपको इसकी जो अपने एमसीक्यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट कोई भी एक इंस्टीट्यूट की तो टेस्ट सीरीज फुल्ली कर लीजिए। वो तो बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है, करनी ही करनी है। एटलीस्ट 1 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही अगर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो दैट विल बी बेटर। मैंने क्या किया था, मैंने टेस्ट सीरीज की थी इनसाइट्स ऑन इंडिया की, और साथ के साथ सिविल्स डेली या सिविल्स 360 इनमें से कोई वेबसाइट थी जो लास्ट 60 डे प्लान करके कुछ लेके आई थी, एंड दे यूज टू पुट सम 25-30 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। तो मैंने उस वेबसाइट पे भी सॉल्व करना शुरू कर दिया था। सो आई फाउंड कि थोड़ा सा वैरायटी क्वेश्चंस की चेंज हो गई थी, एंड मन में फिर ये सेटिस्फेक्शन आ गया था कि ओके, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल टेस्ट सीरीज, और मैंने कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट का भी किया है। Like that, then as pre is approaching, focus more and more on revision of all those tests also that you have done. काफ़ी बार ये गलती हम कर देते हैं, we will say कि हमने ना कोई एक particular test series अच्छे से कर ली है, but
जब तक आपने उसे रिवाइज़ नहीं किया है तब तक इट डज़न्ट मैटर। और रिवाइज़ सिर्फ़ रॉन्ग क्वेश्चन्स को नहीं करना है, रॉन्ग क्वेश्चन्स को तो करना ही करना है मल्टीपल टाइम्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली कि व्हाट वेंट रॉन्ग। जो क्वेश्चन्स आपके सही हुए हैं ना, उनको भी पक्का रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन ना तुक्के से ठीक हो गया हो, या एट द लास्ट मोमेंट वी वुड हैव बीन कन्फ्यूज़्ड बिटवीन 2 ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस में से हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट कुड हैव बीन अ मैटर ऑफ चांस। तो प्रॉपरली क्या आंसर है वो आपको अच्छे से करने के लिए यू हैव टू रिवाइज द होल टेस्ट सीरीज एंड नॉट जस्ट द रॉन्ग आंसर्स। ओके, सो दैट इज अबाउट प्री की स्टेज तक पहुंच गए। जैसे ही प्री खत्म होता है, यू कैन टेक 2 डेज का 3 डेज का ब्रेक, रेजुविनेट योर सेल्फ। और उसके बाद ना मल्टीपल टाइम्स आप वो कैलकुलेशन तो करते रहोगे, मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं प्री में, फलानी की के हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं, विल आई बी एबल टू मेक टू इट और नॉट एबल टू मेक टू इट। वो कैलकुलेशन आपको करनी है, करते रहिए, वेरी लॉजिकल, करना भी चाहिए। But at the same time, don't waste your precious time in just brooding ki you'll be able to make it or not. Please start with full dedication for mains preparation. God forbid अगर उस particular attempt में नहीं हुआ तो next year definitely काम आने वाला है, so you don't have to waste time. Start with your mains preparation. GS की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर ली थी. If you are quite lucky and dedicated, तो मे बी आपने अपने ऑप्शनल की भी कर ली होगी कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर नहीं की है, आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी। मैंने अपने ऑप्शनल को आई वुड से बहुत डेडिकेशन से पढ़ा था, पर आई वाज़ इन नो स्टेज कि आई कुड से दैट आई वुड राइट अ डिसेंट आंसर। कंटेंट बहुत हो गया था दिमाग में, बट आई हैड नॉट रिटन इवन अ सिंगल आंसर टिल दैट डेट। तो अब आप अपने ऑप्शनल की भी अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जो आपने मैं बता रही थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते टाइम 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जिनकी डेली प्रैक्टिस की है, दैट इज़ वन मेथड। व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ फुल लेंथ टेस्ट, तो जो टाइमिंग की कैलकुलेशन होती है, दैट गोज़ दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग इंडिविजुअल आंसर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप हर एक क्वेश्चन में आधा-आधा या 1-1 मिनट एक्सीड करते जा रहे हैं टाइम, ठीक है? 8 मिनट की जगह 9 मिनट लगा रहे हैं, 9 मिनट की जगह 10 मिनट लगा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आपके कई क्वेश्चन छूट जाएँगे। यू कैन डू द ब्रॉड मैथ्स कि 20 क्वेश्चन्स, हर एक में 1 मिनट एक्सेस, तो 20 मिनट गए। 20 मिनट गए तो लगभग आपका ढाई क्वेश्चन लिखना रह गया। So in mains, more than improving the quality of each and every answer, more than that, the important thing is finishing the question paper. That is going to fetch you more marks rather than adding quality to maybe a couple of questions. तो आप वो करिए। विद दैट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, अदरवाइज द सेशन इज़ गोइंग टू बी प्रिटी लॉन्ग। एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड many of these preparation related things in my some other interviews, so probably you can google that if you want to know my strategy. Then I would be coming to couple of other FAQs which I often get. One of the questions is coaching essential? So बच्चे मतलब I'm telling it from the bottom of my heart, and just not my experience but from the experience of many others also, coaching essential नहीं है। बिना कोचिंग के आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोचिंग नहीं, इम्पोर्टेंट है गाइडेंस। ठीक है? एंड व्हाट डू आई मीन बाय गाइडेंस? आप फँसे हुए हैं कहीं पे, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका सपोज़ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या आपको ये नहीं पता है, यू आर नॉट एबल टू असेस योरसेल्फ कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ऐसी जगह पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट गाइड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीबॉडी, अ फ्रेंड, a fellow aspirant, somebody who has already cracked the exam, if you are in touch with any previous topper, etc. वो चीज़ें important होती हैं। Getting your answer assessed by someone good, these things are important. Otherwise देखिए, कोचिंग का सारा कंटेंट एंड जो मटेरियल है वो आजकल वीडियोज़ में अवेलेबल है। आप मार्केट में चले जाते हैं, राजेंद्र मार्केट में एंड एवरीथिंग, तो वहाँ अवेलेबल है सारी किताबें, उनकी क्या कंटेंट रहता है। तो कोचिंग एज़ सच इज़ नॉट दैट नेसेसरी। इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कोई ना कोई गाइडेंस अवेलेबल हो। एंड उसके लिए भी बच्चे मैं ये कहूँगी कि व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग, आई डिड नॉट हैव एनी सच डायरेक्ट गाइडेंस अवेलेबल। मैंने कहीं पे कोचिंग नहीं ली थी, बट थ्रू दीज़ चैनल्स एटसेट्रा ना, इनसाइट्स ऑन इंडिया के थ्रू आई गॉट इन टच विद 2 पर्सन्स। उनके साथ छोटी-छोटी चीज़ें भी डिस्कस हो जाती थी ना, दैट यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट।
सो लाइक दैट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ओके, ऑन मल्टीपल प्रिपरेशन चैनल्स आपको मिल सकते हैं लोग, और गेट इन टच विद लाइक माइंडेड पीपल हु आर डेडिकेटेड, हु आर really into preparation. So through them you can clarify your doubts. Next question. People often ask, should you make notes for current affairs and as well as for GS portion? या फिर without notes you can do. It is again, I would say, a completely personal choice कि what kind of individual you are. मैं अगर अपना experience बताऊं तो I am more comfortable in reading from the book or from the direct source. If I want to add any content, तो मैं उस बुक में ही साइड में मार्जिन में या नीचे हाईलाइट करके आई वुड ऐड दैट एक्स्ट्रा कंटेंट। अगर मैंने कहीं करंट अफेयर से पढ़ा है, कहीं और से मुझे कुछ अच्छा पॉइंट मिला, तो आई वुड ऐड इट देयर एंड देन ऑन द बुक इटसेल्फ। ओके, मैं नोट्स प्रिपरेशन के डायरेक्टली फेवर में क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आई फील कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नोट्स प्रिपरेशन फॉर द करंट अफेयर्स। अब जब प्रोफेशनल लोग अपना टाइम लगा के हमारे लिए बुकलेट्स बना रहे हैं करंट अफेयर्स की, be it Insights on India, be it Vision, or there are many other institutes also. So why to waste your effort in doing this? We are anyway short of time when it comes to UPSC preparation. So let us use our time smartly or more efficiently. This is my take. Baki, it is completely your choice. If you want to make notes for current affairs, go ahead with that.